Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fine. So last week we were doing chapter number 4, our country Pakistan, and I had given you some assignments for doing, which I had told you that it's not necessary to do it in just 1 week. You can do it in your summer vacation as well. Today we are going to complete our chapter, and the assignments that I wanted to give you, that I'll tell you, and you are supposed to complete them before coming to school. Okay, this is our last week of giving you homeworks. With this, our homework system will end, and you have to complete all the tasks that have been given to you from your teacher in these videos. So when you'll make sure that when you'll come to school, your book should be completed, and whatever task or short question answers or assignments, whatever your teacher has given to you, they should have been done on loose sheets, wherever your teacher has told you to do. You must have completed everything properly. So now today, let's start with page number 21. Flag of Pakistan. As you all know, that flag of Pakistan is of 2 colors, that is white and green. It has a crescent and a star in it, and here it's very clearly written that the green color represents Muslims, white represents non-Muslims, crescent represents progress, and star shows the light and knowledge. And some people also say that the 5 corners of these stars, the stars show the 5 pillars of Islam. But here they have written light and knowledge, so we will go with that. Then the population of Pakistan, population of Pakistan keeps on increasing day by day, and there are like every year or after every 2 years we are having consensus. Children, do you know what are consensus? Census. Census किसको कहते हैं बेटे? Census कहते हैं when we count the population. जैसे you are living in Rawalpindi, so all the people who are living in Rawalpindi, if we count them in the year 2020, तो हम कहेंगे ये है census 2020 का. And if we had counted them in 2017, तो वो 2017 का census हो जाएगा. ठीक है, तो here we have census of 2017. The population of Pakistan is more than 200 million. ठीक है, हमारे पास जो सेंसस था 2017 का, अकॉर्डिंग टू इट हमारा जो पॉपुलेशन है वो 200 मिलियन से ज़्यादा है, विच मेक्स इट द 6th मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, और जिसकी वजह से हम 6th मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैं. हमारी पॉपुलेशन जो है वो दैट्स द मोस्ट, एंड वी आर ऑन नंबर 6 according to census of 2017. But obviously जिस तरह टाइम पास होता है पॉपुलेशन और भी इंक्रीज होती जाती है. तो नाउ इफ यू गो फॉर सेंसस नाउ डेज, तो ऑब्वियसली हमारी पॉपुलेशन इससे भी कहीं ज़्यादा होगी. तो सेंसस बेटे इसको कहते हैं. सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि काउंटिंग ऑफ पीपल इन ऑफ अ सिटी और ऑफ अ कंट्री. ठीक है, हम कंट्री को डिवाइड करते हैं इन डिफरेंट सिटीज़, और सिटीज़ को फिर डिवाइड करते हैं इन डिफरेंट एरियाज. डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, प्रोविंसेस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं. फिर हम इन स्मॉलर डिविजन्स के साथ हम काउंटिंग करना शुरू करते हैं. एक एक घर की फैमिली मेम्बर्स की काउंटिंग होती है, और फिर उसको हम कलेक्ट करते हैं. देन वी कम टू नो कि हमारी पूरी कंट्री में कितने लोग रहते हैं. ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सेंसस. राइट, आई होप आपने ये वर्ड जो है प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लिया होगा. द इंक्रीजिंग, अब ऑब्वियसली जिस तरह पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो वी आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स. हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो सिर्फ इस इंक्रीज इन पॉपुलेशन की वजह से हमें फेस करने पड़ते हैं. जैसे देयर आर लेस हाउसेस, देयर आर मोर पीपल, सो वी नीड मोर हाउसेस. और इसी तरह बिकॉज देयर आर मोर पीपल, सो वी नीड मोर स्कूल्स टू एजुकेट आवर चिल्ड्रन. और इसी तरह हमारे पास जो रिसोर्सेज होती हैं, जैसे फूड होता है, जैसे शॉर्टेज ऑफ वाटर आ जाती है, इस तरह की चीज़ें हमारे पास कम पड़ जाती हैं क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है. अब पाकिस्तान इज नॉट दैट बिग इन एरिया. अगर हम पॉपुलेशन को उसकी कंपेयर करें एज कंपेयर टू द साइज ऑफ आवर कंट्री, तो हमारा साइज कंट्री का बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बट पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है. और पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से ऑब्वियसली वी फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, जिनके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो. आई विल गिव यू अ रीकैप बिकॉज मैंने जो आपको क्वेश्चन आंसर्स देने हैं उसके लिए आई रियली वांट टू मेक श्योर कि आपको सब चीजें समझ में आई हो.
देन कमिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बेटे किसको कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं उर्दू में आइन। आइन आपने नाम सुना हुआ है कभी? हैव यू एवर हर्ड दिस वर्ड इन न्यूज? आइन पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ लॉज दैट अ कंट्री फॉलोज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि इफ यू आर ड्राइविंग ऑन रोड, ठीक है, तो रोड पर ड्राइव करने के लिए यू नीड टू हैव सम सेट ऑफ रूल्स। अगर कोई रूल्स नहीं होंगे तो कोई भी कार कहीं से भी चली जाएगी, कहीं से भी ओवरटेक कर लेगी, कहीं से भी आपको क्रॉस कर लेगी, और देयर वुड बी अ लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स दैट वुड बी हैपनिंग ऑन द रोड। तो फॉर ड्राइविंग ऑन द रोड देयर आर सम स्पेशल लॉज कि आपने ओवरटेक कब करना है, आपने ड्राइविंग कैसे करनी है, देयर शुड बी अ स्पीड लिमिट, आपने कहाँ स्टॉप होना है, देयर आर ट्रैफिक सिग्नल्स। तो ये इस तरह के रूल्स होते हैं। अब ये दीज आर द सेट ऑफ रूल्स फॉर ड्राइविंग ऑन द रोड। तो सिमिलरली फॉर ड्राइविंग अ होल कंट्री, अगर आप एक पूरी कंट्री चला रहे हैं तो यू नीड टू हैव अ सेट ऑफ रूल्स। उन रूल्स के विदाउट दैट रूल्स यू आर नॉट सपोज टू रन अ कंट्री। यू विल नेवर बी एबल टू कंट्रोल द पॉपुलेशन या फिर उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपके पास कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं है। तो आप कैसे मेक श्योर करेंगे कि एवरीबडी इज अबाइडिंग बाय द रूल्स एंड एवरीबडी इज डूइंग वट एवर द गवर्नमेंट वॉन्ट्स देम टू डू इन दैट पर्टिकुलर वे। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेटा कहते हैं अ सेट ऑफ लॉज दैट अ कंट्री फॉलोज। इट मे डिफाइन द ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट एंड देयर रोल। इट ऑल्सो स्टेट्स द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिटीजन्स। रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन से हमें पता चलता है कि व्हाट आर आवर राइट्स। बीइंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का शहरी होने की वजह से व्हाट आर आवर राइट्स, हमारे क्या हकूक हैं, व्हाट शुड वी गेट, हमें क्या मिलना चाहिए, विच इज बेसिकली द बेसिक नीड्स, दैट इज pure water, that is living, that is clothing, that is food, that is schooling, education। तो ये सब हमारे राइट्स हैं। बीइंग सिटीजन्स हमारी ये राइट्स हैं कि हमें एक अच्छी स्कूलिंग मिलनी चाहिए, लिविंग मिलनी चाहिए, एक अच्छी इन्वायरमेंट मिलनी चाहिए। सो दीज आर आवर राइट्स। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है हमारी? बीइंग अ सिटीजन वी हैव टू कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन, वी हैव टू अबाइड बाय द रूल्स, हमने रूल्स को ब्रेक नहीं करना है, और वी शुड नॉट बी डूइंग एनी सच थिंग जिससे हमारी कंट्री को या हमारी रेपुटेशन को जो हार्मफुल हो उसके लिए, ठीक है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, और ये सब हमें कहाँ से पता चलता है? कॉन्स्टिट्यूशन से। पाकिस्तान फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज ड्राफ्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड इन 1973 का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, जो सेट ऑफ रूल्स बने हुए हैं, हम अभी तक उसी को फॉलो कर रहे हैं। द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर, अब इन्होंने आपको 3-4 पॉइंट्स दिए हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दीज पॉइंट्स, ये दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स। वरना कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो सेट ऑफ लॉज एक्चुअली है, दैट इज अ वेरी बिग बुक, ठीक है, and that is a very detailed thing, or students who take that subject, वो उसको properly law as a subject, they properly read that constitution and they learn all those points, और वो इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। but here they have given you some points just to clear the concept of constitution. Now, Betty, here are some question answers regarding the flag of Pakistan and some topics that we have read. Let's start doing them topic wise so that you can understand them properly. Okay, the first question that I want you to do is, what do these represent in a Pakistani flag? What do these represent in a Pakistani flag? एक Pakistani flag में what do these things represent? First is green color, second is white color, third is crescent, and the fourth one is star. So the answer is clearly written in this paragraph. You can see that green color represents, so you will write here the Muslim majority, then white color represents the people belonging to other religions or the minority or the non-Muslims. Then the crescent represents progress, and the star shows light and knowledge. So you can easily give the answer, write the answer over here, and it should not be more than just one sentence. Going to question number 2. List down some public issues existing in Pakistan. For this question, bete, we have to read the next page very properly. And as you know, as I have told you, कि जो census हैं उससे हमें पता चला कि Pakistan is the 6th most populous country of the world. So the size is not that big, but our population is increasing day by day. So there are some public issues that we are facing, और इन public issues की वजह से there our development is getting affected.
हम उस तरह की डेवलप्ड कंट्री नहीं बन रहे, इंस्टेड वी आर अ डेवलपिंग कंट्री। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है डेवलपिंग का कि वी आर लर्निंग हाउ टू improve our system and how to work properly। और अभी भी हमारे पास जो हमारी कंट्री है उसमें पुअर पीपल का रेशियो जो है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, पुअर पीपल आर देयर आर लॉट ऑफ पुअर पीपल, पावर्टी बहुत ज़्यादा है। तो वो कुछ पब्लिक इश्यूज हैं जो यहाँ डिस्कस हुए हैं, विच आर बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से हम फेस कर रहे हैं। सो व्हाट आर दीज? We have learned that its population is growing rapidly, therefore the citizens are facing many issues including water shortage, lack of opportunities for education and pollution। यहाँ पर सिर्फ 3 issues इन्होंने highlight किए हुए हैं, that is water shortage,